So now let's start with the transformation. First of all, we have to transform the simple sentence into compound sentence. Now I have told you everything about what is simple sentence, what is compound sentence. So now let's convert the simple sentence into compound sentence, which is our main topic. So simple sentence can be converted or transformed into compound sentence by joining independent clauses by coordinate conjunctions as shown below. I have told you earlier, if you want to transform, अगर आप simple sentence ਨੂੰ compound ਵਿੱਚ convert करना है तो दो independent clauses ਨੂੰ किहदे नाल जोड़ना है conjunctions नाल. Coordinate ਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ है जोड़नगे हो, right? Which I have already told you. Now first of all we have the examples. First is simple sentence है the match being over, the player went home. तो now the compound sentence की बनेगा ਇਹਦਾ the match was over and the players went home, right? कि एक दूसरे नाल जुड़े हुए हैं और continuation भी ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ कि मैच ओवर हो गया प्लेयर घर चले गए, then we always join with the help of and. So this has become compound. Now the second example is being innocent, he never thought of running away. क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ innocent ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ. So I'll just ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ innocent ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ continuation ਵਿੱਚ process ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ obviously ਇਹਦੇ ਚ and ਆਏਗਾ. ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ he was innocent and ਜਿਹੜਾ he ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, obviously we have written here, right? So he was innocent and never thought of running away. ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਭੱਜਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ. Now the next one is we must eat to live. Simple sentence है, this is a subject, this is a predicate. Now we'll convert into compound. We must eat or we cannot live. यानी और ਨਾਲ जोड़ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ with the help of conjunction, but meaning should remain the same. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਵਰਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ meaning should not be changed, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ definitely we have to use the conjunction. Now the next is fourth one, though young he was wise. He was the compound बन गया he was young but wise. भी दो मतलब ਹੁੰਦਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਯੰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਨਾਲ. ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਹੈ he was young but wise. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ. Next is he fell on the ground to escape being crushed. Escape ਹੁੰਦਾ ਬਚਣਾ, मतलब ग्राउंड ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, crush ਹੋਣ ਤੋਂ मतलब ਕੁਚਲ ਜਾਣ ਤੋਂ. He fell on the ground, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾ मतलब ground ਤੇ ਤਾਂ क्या ਹੁੰਦਾ, ਉਹ crush ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਇਹੀ meaning ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦਾ. He fell on the ground और ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ conjunction ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ meaning he would have been crushed. इसमें थोड़ा सा तुसी कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आप टेंस का इस्तेमाल करना है. नाउ ये तो हो गया कंपाउंड विच कन्वर्ट करना. नाउ विल कन्वर्ट द सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लैक्स सेंटेंसेस. आई हैव टोल्ड यू अर्लीयर ऑल्सो कॉम्प्लैक्स सेंटेंस दे विच तुसी जिहड़ा है दो थोड़े अपने थोड़े क्लॉजेस आएंगे जिहड़े कि दूसरे पर डिपेंड करनगे, राइट? वन मेन क्लॉज एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज. और मैं तुहानूं ये भी दस चुकी है कि हु विच वैन वेयर वगैरह जिहड़े वर्ड्स आंदे है उन्हां दे राहीं आपां इन्हां नूं जॉइन करांगे कॉम्प्लैक्स सेंटेंस विच कन्वर्ट करन लई. जिवें सिंपल सेंटेंस है ही हैज़ अ मिसचीवियस सन, भी ਉਹਦਾ बेटा शरारती है, तो ਇਹਦਾ कॉम्प्लैक्स क्या बन जाएगा ही हैज़ अ सन. हुण सन की गल हो रही है, लिविंग चीज़ है इसलिए हु आएगा, और प्रेजेंट टेंस चल रहा है हु इज मिसचीवियस इधर आ जाएगा. सो इट्स वेरी ईजी टू कन्वर्ट. जिवें थोड़ा प्लीज ब्रिंग द चेयर, तो हुण ਇਹਦਾ थोड़ा जिहड़ा कॉम्प्लैक्स बनेगा प्लीज ब्रिंग द, ਇਹਨੂੰ नाउन थोड़ा जिहड़ा ये क्लॉज है नाउन क्लॉज है क्योंकि आप वस्तु की गल कर रहे हैं. मैं पिछे तुहानूं दस चुकी हैं जिहड़ा नाउन की तरह काम करेगा वो नाउन क्लॉज, जिहड़ा सबऑर्डिनेट क्लॉज होएगा, और जिहड़ा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा यानी खासियत दसेगा एडजेक्टिव क्लॉज, ऐदां एडवर्ब क्लॉज. सो प्लीज ब्रिंग द चेयर. हूँ चेयर नॉन लिविंग चीज़ है इसलिए विच आ गया, और प्रेजेंट टेंस चल रहा है इज, बिग इधर आ जाएगा. बिग क्या है, क्वालिटी है उसकी. नाउ नेक्स्ट इज आई वॉन्ट अ रेड पेन. सो कितना बनेगा, इट्स वेरी सिंपल. आई वॉन्ट अ पेन, हूँ लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ है जिवें चेयर है, ऐदा ही पेन है विच इज रेड, इसमें इधर ले आना है इसकी क्वालिटी. नाउ सिंपल आ गया. इंडिया इज माई लैंड ऑफ बर्थ. इंडिया इज द लैंड, हूँ प्लेस की गल हो रही है इसलिए वेयर आएगा, वेयर आई वॉज बोर्न. आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स क्वाइट सिंपल. Now fifth example is he died
इन हिज यूथ, भी अपनी जवानी च मर गया। सो जगह टाइम की गल हो रही है, यूथ की गल हो रही है, तो वैन आएगा। वैन ही डाइड ही वॉज वेरी यंग। ठीक है जी, नाउ इट्स क्लियर। नाउ वी विल डू द रिवर्स। हमने आप सिंपल नू कंपाउंड बनाया है, सिंपल नू कॉम्पलैक्स बनाया है। नाउ वी विल ट्रांसफॉर्म कंपाउंड इंटू सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्पलैक्स इंटू सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कंपाउंड सेंटेंस, यानी जिदे थोड़ा कंजंक्शन आएगा। हुण आपां क्या करना है, कंजंक्शन नू रिमूव करके सिंपल बनाना है। ही मस्ट रन फास्ट और ही विल नॉट कैच द ट्रेन। सो ਇਹਦਾ बन जाएगा ही मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, बिकॉज हुण आपां सिंपल सेंटेंस बनाना है, एक सब्जैक्ट और बाकी प्रेडिकेट, नो क्लॉजेस। कॉम्पलैक्स दे विच कंपाउंड दे विच क्लॉजेस आएंगे, सिंपल एक सेंटेंस होएगा पूरा, जिदे एक सब्जैक्ट होएगा, एक प्रेडिकेट होएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंस इज ही वॉज लेजी देयरफॉर ही फेल्ड। हुण इत्थे क्या है, कंजंक्शन, आपां इहनूं रिमूव करना है बिकॉज आपां सिंपल बनाना है। तो किद्दां बनेगा, बीइंग लेजी ही फेल्ड। थर्ड इज the sun rose and the sky cleared. The sun having risen यानी rose दी थर्ड फॉर्म आ गई, the sky cleared because and we have to remove, and मतलब कि sky sun निकल गया, sky clear हो गया, पीछे मैं दस चुकी है, एक तो बाद एक प्रोसेस होता है, उत्थे एंड आता है, बट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सिंपल, तो आपां नूं इहनूं रिमूव करना है। the sun having risen the sky cleared। कंपाउंड अगला है, ही रिपीटेडली फेल्ड बट ही डिड नॉट गिव अप। भाई वो बार बार फेल हो रहा है या असफल हो रहा है, फिर देखो बट दे नाल जुड़िया, फिर भी वो गिव अप नहीं कर रहा है, यानी हार नहीं मान रहा। तो इहदा बनेगा भी इंस्पाइट ऑफ दा मतलब होंदा बजाय, भी रिपीटेड फेलियर तो बावजूद, असफलता मिलने तो बावजूद ही डिड नॉट गिव अप, उन्हें मेहनत करनी नहीं छड्डी या उसने हार नहीं मनी। सो दिस इज योर सिंपल सेंटेंस। सो ये कंपाउंड नूं आपां सिंपल बना दिता। नाउ कॉम्पलैक्स नूं आपां सिंपल बनाना है, यानी विच हु वगैरह जिहड़े मैं तुहानूं पिछे दस्से सीगे वो आपां नूं रिमूव कर देने हैं, बिकॉज सिंपल विच कन्वर्ट करना है। सो कॉम्पलैक्स है, आई सॉ एन एनीमल विच वॉज 3 फुटेड। मैं एक एनीमल देखा जिहदे 3 पैर सीगे, तो विच एनीमल दे लिए आपां विच यूज करते हैं, आई सॉ अ 3 फुटेड एनीमल। इहनूं इधर ले आना, इहनूं इस दे नाल जोड़ना, जिवें आपां पिछे इहदे नाल इदां ही कन्वर्ट करके बनाया सीगा। नाउ वी हैव टू डू द रिवर्स थिंग। I was glad when I heard your success. I was glad to hear of your success. Although the current was fast, we went swimming. भी धारा बहुत तेज सीगी पानी दी, फिर भी असीं स्विमिंग करते रहे। Although दा मतलब होंदा जद कि, this is your conjunction. So we went swimming in spite of current being fast. भी तेज धारा होने के बावजूद भी असीं स्विमिंग करते रहे। Now the next complex is she walks as if। as if ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੂ ਵੈਨ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਐਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ। तो she walks ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ like a queen, because this is your simple sentence. Now the next ट्रांसफॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ਰਟ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ਰਟਿਵ यानी ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ਰਟਿਵ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ, यानी ਨਾਵਾਚਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ डिफरेंट रूल्स है। सो रूल नंबर 1 इज ओनली अलोन या मेयरली जिथे आएगा, मेयरली का मीनिंग भी ओनली होंगे, आर रिप्लेसड बाय नन बट, यानी जिथे ओनली आएगा, अलोन आएगा या मेयरली आएगा, उसनों आपां नन बट दे नाल रिप्लेस कर देना। जिवें ओनली गॉड कैन हैल्प अस, उहदा नेगेटिव क्या बन गया, नन बट गॉड कैन हेल्प अस, बाकी इतना ही आ जाएगा। रूल नंबर 2 मस्ट इज रिप्लेसड बाय कैन नॉट बट या कैन नॉट हेल्प, यानी जिथे थानू मस्ट मिलेगा, मस्ट यूज ये थोड़ा मोडेल है, बहुत जरूरी काम के लिए यूज करते हैं आप मस्ट, जिवें रूल्स वगैरह की गल करते हैं। जिवें देखो वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, भी सानू अपने माता पिता का कहना मनना चाहिए। तो यह नेगेटिव किवें बनेगा, कैन नॉट बट लगा के या कैन नॉट हेल्प, दोनों तरीके ना सही है। वी कैन नॉट बट ओबे आवर पेरेंट्स, भी सानू कुछ भी होवे मतलब उन्होंने कहना मनना पैना, या वी कैन नॉट हेल्प ओबेइंग आवर पेरेंट्स, भी असीं इस मामले कुछ नहीं कर सकते, भी सानू ओबे करना ही पैना है। तो मीनिंग वही निकल रहा है। नाउ द रूल नंबर 3 बोथ एंड, जिहड़े बोथ और एंड यूज होंगे थोड़े कंजंक्शन, इन्हां नूं रिप्लेस करते हैं नॉट ओनली डैश 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 बट ऑल्सो, दीज ऑल योर कंजंक्शंस। सो एजर्टिव है थोड़ा बोथ नवजोत सिंह एंड नवजोत कौर वर एक्साइटेड, भी इत्थे देखो बोथ आ गया और ए एंड आ गया,
ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ मीनिंग सेम होना चाहिए कि नॉट ओनली नवजोत सिंह, नॉट ओनली इत्थे आ गया ना केवल, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो अलग अलग आएगा, बट नवजोत कौर वॉज ऑल्सो एक्साइटेड, ठीक है, ना केवल नवजोत सिंह बल्कि नवजोत कौर भी एक्साइटेड थे। मीनिंग तो सेम हो गया लेकिन नॉट आ गया यानी नॉट ओनली जिहड़ा है थोड़ा नैगेटिव दे विच आंदा है। तो whenever we convert adjective into negative the meaning should remain same। Rule number 4, and is replaced by नॉट ओनली बट ऑल्सो। उपर वाली गल आ गई अगर कितने एंड भी आ रहा है उसनों भी तुसी नॉट ओनली और बट ऑल्सो नाल रिप्लेस करोगे। जिवें ही वॉज ओबीडियंट एंड जेंटल, ही वॉज नॉट ओनली ओबीडियंट बट ऑल्सो जेंटल। रूल नंबर 5, एवरीवन अगर कितने आ रहा है, एवरीबडी आ रहा है, एवरी परसन आ रहा है या कला एवरी आ रहा है, उहदे नाल नाउन आ रहा है, ऑल आ रहा है, उन्होंने आपां रिप्लेस बाय देयर इज नो तो रिप्लेस करके डैश 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 बट आएगा। जिवें एग्जाम्पल देखो एवरी आ गया, देखो एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, तो कितना लिखांगे देयर इज नो मदर बट लव्स हर चाइल्ड। 6th रूल, नो एज सून एज रिप्लेस्ड बाय नो सूनर हैड देन, THEN। अगर कितने एज सून एज आ रहा है, एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे, नो सूनर हैड लगा के द थीफ सॉ द पुलिस ऐदा लगा देना है और फिर THEN देन लगा के जेड़ा बचता है ही रैन